हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर एसएचएम ये डिस्कस करेंगे, राइट। सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम हैविंग सेम ओमेगा एंड ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ये देखा है हम लोगों ने इसके पहले। इजी है कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम के अंदर। बट अगर मुझे डिस्कस करना है कि अगर मेरे पास दो परपेंडिकुलर एसएचएम है तो हाउ टू डील विथ सच केसेस, और 2018 में उसके ऊपर एक जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया। थोड़ा सा टफ कंसेप्ट है, इसीलिए अलग से वीडियो बना रहा हूं। तो राइट डाउन हेडिंग सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर एसएचएम। सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर SHM. Now let's say you have a SHM x is equal to a sin omega t and you have another SHM that is y. Y is equal to b sin of omega t plus theta, right? Consider theta is the angle between phase difference between x and y, right? इतना दिया है. Let's say this is equation number 1 and this is equation number 2. Now all these two SHM are happening in different direction. First SHM is happening in x direction and second SHM is happening in y direction. See the diagram. This is the x SHM and this is the y SHM. यहाँ पर दोनों SHM है आपके पास। मुझे क्या करना है अभी यहाँ पर, इसका ग्राफ प्लॉट करना है कि x का ग्राफ कैसे आएगा, y का ग्राफ कैसे आएगा। To draw the graph here, we must know the value of theta because as theta changes, value of y changes, right? So let's say consider theta is equal to, let's say this is case number 1 in which I have considered theta is equal to 0 degree. So if we are considering theta is equal to 0 degree, then value of y is equal to, it will be b sin of omega t. And value of x will be remain same, that is a sin of omega t. तो दोनों भी सेम है ना, यहाँ पर y भी सेम है, x सेम है एंड y का वैल्यू क्या मिला हमें, b sin omega t मिला. If we divide y by x, if we divide these two equation, then sin will get cancel out. If sin is getting cancel, then the ratio will be b divided by a. So we can write y is equal to b divided by a into x, right? तो ये जो y is equal to b by a into x है, this is a equation of a straight line passing through the origin. अगर इसको मैं इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूँ तो एक ग्राफ कैसे आएगा, देखो यहाँ पर। सो ये है आपका x एक्सिस एंड ये है आपका y एक्सिस। एक लाइन आने वाला है, जो लाइन कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। नाउ हमें यहाँ पर चेक करना है कि एक्चुअल में उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। तो फॉर दैट पर्पज व्हाट आई विल डू, आई विल कंसीडर सम जनरल टाइम इंस्टेंट्स यहाँ पर। लेट्स से आई एम कंसिडरिंग t इज इक्वल टू 0. सो फॉर एनी जनरल टाइम t वी हैव वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a sin of omega t, right? And value of y is equal to a sin of omega t. x is equal to a sin omega t, y is equal to a sin omega b sin omega t, not a sin omega t, b sin omega t. So let's say I am considering t is equal to 0. If we put value of t is equal to 0, then the value of x will be a sin 0. Sin 0 will be 0, so x is equal to 0 and similarly y will be equal to 0. If we put the value of t is equal to pi divided by 2 omega in the equation of x, then x is equal to a sin of omega into pi divided by 2 omega. So this omega will get cancel out. Sin of 90 will be 1. So value of x is equal to plus a. Similarly value of y is equal to plus b, right? No need to solve for b because value of x and value of y has same formula. Now suppose we are putting t is equal to pi divided by omega, then x is equal to a sin of omega t. Omega into t is pi divided by omega. Omega will get cancel out and x is equal to a sin pi. Sin pi is 0. So x is equal to 0. Similarly y will be also equal to 0. Now consider t is equal to 3 pi divided by 2 omega.
then the value of x is equal to a sine of omega t, omega into 3 pi divided by 2 omega. Omega will get cancel out, 3 pi by 2 means sine of 270, sine 270 will be equal to minus a minus 1. So x is equal to minus a, and similarly y is equal to minus b, right? Again, let's say you are considering t is equal to 2 pi. If you put t is equal to 2 pi by omega here, omega will get cancel out, and a of sine of 2 pi will be equal to 0. So again x is equal to 0 and y is equal to 0, right? So if we summarize all the things, see, at t is equal to 0, I am having coordinate. What is the coordinate? 0 comma 0. At t is equal to pi divided by 2 omega, I am having coordinate. Which are the coordinate? Plus a comma plus b. At again t is equal to this pi by omega, I am having the coordinate 0 comma 0, and t is equal to 3 pi divided by 2 omega, I am having the coordinate minus a comma minus b, and at t is equal to 2 pi, I am having the coordinate 0 comma 0. If we plot all this data on the graph, so the graph will look like this. See, at t is equal to 0, I am having coordinate 0 comma 0. At t is equal to pi by 2 omega, I am having coordinate plus a plus b. So let's say plus a means it will lie somewhere here, plus b it will lie somewhere here. So intersection point of plus a and plus b will be this one. So this is happening at t is equal to pi divided by 2 omega, right? Means as the time is changing from t is equal to 0 to t is equal to pi by 2 omega, the graph is moving like this, right? Again, at t is equal to pi by omega, again the graph comes to the origin. So it is retracing its original path, right? Again at t is equal to 3 pi by 2 omega, graph is at minus a minus b. So x coordinate is minus a, y coordinate is minus b. So intersection point of minus a minus b means this will be the intersection point here. This is happening at t is equal to 3 pi by 2 omega. Now graph is moving like this, and again at t is equal to 2 pi, coordinates are 0 comma 0. Now you can observe one thing here, the graph started from the origin. It is moving in the first quadrant. Again it is moving to the origin and extended to the third quadrant. Again it is moving to the origin. Now as time is increasing, particle is performing SHM. सपोज आप लोगों को पूछा गया यहाँ पर कि बोलो ये जो SHM है इसका एम्पलीट्यूड कितना है, देन द लेंथ दिस डायगोनल, यहाँ पर जो आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है उसका डायगोनल मतलब ही आपका क्या है, रिजल्टेंट है. यू कैन राइट रिजल्टेंट एज r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. एंड इन विच क्वाड्रेंट दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. एनी डाउट हियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे. अभी यहां पर मैंने क्या कंसीडर किया था, थीटा इज इक्वल टू 0. लेट्स से केस नंबर 2. नाउ केस नंबर 2 एंड केस नंबर 1 आर बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर. लेट्स से आई एम कंसीडरिंग थीटा इज इक्वल टू पाई. If theta is equal to pi, then we can write the value of y will be equal to value of y will be equal to b sine of omega t plus pi. b sin omega t plus pi means sin theta plus pi क्या होता है, माइनस साइन. तो value of y will be equal to minus b sin of omega t, and the value of x will be equal to a sin of omega t. If you divide these two equations, then you will get y divided by x is equal to minus b divided by a. So y is equal to minus b divided by a into x. Now observe one thing, in case of case number 1, that is theta is equal to 0, equation was y is equal to b by a into x. And in case number 2, if we consider theta is equal to pi, equation is changed.
and equation is y is equal to minus b by a into x. तो graph will look like this. If you plot the graph ना, तो it will look like this, right? So again the particle is performing SHM having amplitude under root of a square plus b square. So case number 1 and case number 2 are nearly same. All the data will remain same, just quadrant will change. Now the important case is case number 3, in which let's say theta is equal to pi by 2. Here we can have different cases if theta is equal to pi by 2. If theta is pi by 2, then y can be written as b sine of omega t plus 90. अगर ये ओमेगा टी प्लस 90 है, देखो साइन थीटा प्लस 90 कितना, कॉस ओमेगा टी, तो बी कॉस ओमेगा टी. द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी. तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर ये एक्स वाई साइन एंड कॉस है, इसको डिवाइड भी करेंगे तो साइन एंड कॉस कैंसिल नहीं होगा, वहां पे कुछ तो टैन आने वाला है. सो इट्स बेटर इसको हम लोग ऐसे ही रहने दे एंड अलग अलग टाइम इंस्टेंट के लिए इसको हम लोग सॉल्व करें. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम कंसिडरिंग t इज इक्वल टू 0. t इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू, लेट्स से दिस इज x इज इक्वल टू, एक मिनट काम करते हैं हम लोग, यहां पर लेंगे हम लोग, हाँ लेट्स से दिस इज t, नहीं t इज इक्वल टू 0 के लिए तो ये t है. Let's say this is your x is equal to a sin omega t, and let's say this is y is equal to b cos omega t. ये आपको ऐसे दिया गया है. तो अगर मैंने t is equal to 0 कंसीडर किया, let's say initially t is equal to 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, साइन 0 विल बी 0 एंड वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू प्लस b. सी हियर, यहाँ पे चेंज हुआ, केस नंबर 1 केस नंबर 3 कंपेयर करना. केस नंबर 1 में दोनों भी 0 आ रहा था, बट यहाँ पर y कंपोनेंट कितना मिला आपको, b मिला. नाउ इफ आई एम कंसिडरिंग t इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी a sin of omega t. t will be equal to pi divided by 2 omega. Omega will get cancelled out. Sin 90 will be equal to 1. So x will be equal to plus a, and the value of y will be equal to 0 because cos 90 is equal to 0. Now t is equal to, let's say this is pi divided by omega. So value of x is equal to a sin of omega t. t is pi by omega, so omega will get cancelled out. Again x value of sin pi will be 0, but if you consider y, that will be cos pi. Cos pi मतलब क्या होगा, cos 180 is equal to minus 1, so this is equal to minus b. And if you are considering t is equal to 3 pi divided by 2 omega, then a value of x will be equal to a sin of, see, omega into 3 pi by 2 omega. So this omega will cancel out. Sin 270 degree will be equal to minus 1. The value of x is equal to minus a, and value of y, what is the value of sin cos 270? It will be equal to 0. Again for time t is equal to how much, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. चलो वो भी हम लोग पुट करते हैं, हालांकि वो पुट करने की जरूरत नहीं है. t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू प्लस b. तो फाइनली सी वी हैव रिजल्ट हियर. एट t इज इक्वल टू 0 आई एम गेटिंग 0 कॉमा b कोऑर्डिनेट्स. एट t इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, एट t इज इक्वल टू 0 आई एम गेटिंग 0 कॉमा b कोऑर्डिनेट, राइट. At t is equal to pi divided by 2 omega, I am getting the coordinates as a comma 0. At t is equal to how much, pi divided by omega, I am getting the coordinate as 0 comma minus b. And at t is equal to how much, 3 pi divided by 2 omega, I am getting the coordinate at 3 pi by 2 omega means minus a comma 0. And t is equal to 2 pi by omega, again I am getting 0 comma b. So this sequence will get repeated. This sequence will get repeated, 0 comma b, a comma 0, 0 comma minus b, and minus a comma 0, right.
अभी इसको अगर हम लोग प्लॉट करें यहाँ पर ग्राफ के ऊपर, तो ये ग्राफ कैसे आएगा देखो, सी at t is equal to 0 I have coordinate 0 comma b, so this is 0 and b, y coordinate is a b, so this is plus b, right? This is happening at t is equal to 0. Now second coordinate I have a comma 0. A comma 0 means it will lie somewhere here, so this is t is equal to pi divided by 2 pi by 2 omega. Now we have coordinate 0 comma minus b, means this will be equal to this. This is minus b, t is equal to pi divided by omega, and 0 comma minus b, y after this minus a comma 0, minus a comma 0 will lie somewhere here, that is t is equal to 3 pi by 2 omega, and again coordinate will be 0 comma b. So ये सारे पॉइंट को अगर आप लोग कनेक्ट करोगे तो t is equal to 0, pi by 2 omega, pi by omega, 3 pi by 2 omega, again 2 pi by omega. सो अगर सारे पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर एक सर्कल और इलिप्स, ये इलिप्टिकल और सर्कुलर शेप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जिसमें ये वाला जो लेंथ है इसका a है और ये वाला जो लेंथ है इसका b है, राइट? अगर ये a इज इक्वल टू b है, मीन्स दोनों अगर साइड सेम है, तो वी कैन से दिस शेप इज अ सर्कल, एंड अगर a इज नॉट इक्वल टू b है तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं कि सर ये दिस इज इक्वल टू एलिप्स, राइट? तो यहाँ पर सर्कल भी बन सकता है, एलिप्स भी बन सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वैल्यू ऑफ a एंड b. इफ बोथ आर सेम इट विल बी अ सर्कल, इफ बोथ आर डिफरेंट इट विल बी अ एलिप्स, राइट? तो ये था सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर SHM, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या पता चला कि इफ टू SHM आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड अगर हम लोग उसमें एंगल का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ना हम लोगों ने एम्पलीट्यूड चेंज किया ना फ्रीक्वेंसी चेंज किया, हालांकि आप लोग चेंज कर सकते हो, एक हम लोगों ने एम्पलीट्यूड भी लगभग सब हर केस में सेम रखा है। एम्पलीट्यूड चेंज होने से क्या चेंज होगा? शेप चेंज होगा। ओमेगा भी सेम रखा है, ओमेगा तुम लोग चेंज कर सकते हो, ज़्यादा ये कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बचा क्या है यहाँ पर अपना, सिर्फ अगर हम लोगों ने थीटा चेंज किया तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे पहले एक स्ट्रेट लाइन मिला था पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बाद में हमें थीटा चेंज किया तो हमें क्या मिला? यहाँ पर सर्कल मिला या इलिप्स मिला, या आगे जाके में भी हाइपरबोला, पैराबोला कुछ भी मिल सकता है, राइट? सो अगर दो परपेंडिकुलर SHM सुपरपोज कर रहे हैं तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कोई भी शेप बना सकता है। यहाँ पर मे बी वो SHM हो सकता है, मे बी वो UCM हो सकता है, मे बी वो पैराबोलिक मोशन हो सकता है, मे बी वो हाइपरबोलिक मोशन भी हो सकता है, और इट माइट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मोशंस डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ थीटा, राइट? तो एक बार एक देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, है क्या क्वेश्चन अपने पास? लेट मी चेक। यस, आई थिंक आई हैव अ क्वेश्चन हियर। हाँ, यही क्वेश्चन है। तो देखो क्या दिया है यहाँ पर, टू सिंपल हार्मोनिक। कब पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन? टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, two simple harmonic motions as shown below are at right angles, they are combined to form Lissajous figures. अच्छा, now जो फिगर हम लोगों ने अभी तक पढ़े ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, such figures are called as Lissajous figures. now यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया है, x is equal to a sin of at plus delta and y is equal to b sin of bt. अभी इसने क्या किया इस केस के अंदर, ओमेगा दैट इज फ्रीक्वेंसी दोनों का अलग अलग लिया, मे बी वो फ्रीक्वेंसी सेम भी हो सकता है, तो जनरल केस यहाँ पर है। तो सी हियर, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए के साथ हम लोग डील करेंगे। ऑप्शन ए में उसने क्या बोला है कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? देखो a साइन ऑफ, एंड a इज इक्वल टू b भी दिया है, डेल्टा 0 एंड a इज इक्वल टू b है, लेट्स से दिस इज ओमेगा, तो a साइन ओमेगा t आएगा एंड y इज इक्वल टू b साइन ऑफ ओमेगा t। सो x एंड y बोथ आर सेम, तो हमें पता है कि ये ले कैसा मिलेगा आपको ग्राफ, तो ये ऐसा मिलने वाला है ग्राफ, अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ऑप्शन ए के लिए ये लाइन इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट?
उसके बाद सेकंड देखते हैं, a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी, बट डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ऑप्शन बी में उसने डेल्टा क्या दिया है, 90 दिया है। अभी डेल्टा 90 मतलब हमें पता है वो सर्कल बनेगा नहीं तो इलिप्स बनेगा। अब ये सर्कल है, इलिप्स है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो एम्पलीट्यूड के ऊपर। अगर a इज इक्वल टू बी है, ऑप्शन बी में a इज इक्वल टू बी है, मतलब ऑब्वियस वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। एंड a इज नॉट इक्वल टू b है, एम्पलीट्यूड अगर अलग अलग है तो वो इलिप्स बनेगा। तो a इज इक्वल टू बी के लिए वो सर्कल बनेगा, एंड a इज नॉट इक्वल टू बी एंड थीटा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाई 2, वो इलिप्स बनेगा। तो बचा कौन सा, ये वाला ऑप्शन। तो ये वाले ऑप्शन के लिए वो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, राइट। अच्छा, पैराबोला के लिए सॉल्व करके दिखाओ क्या यहाँ पर। सी के एग्जाम्पल ले लो, डी के लिए तुम लोग। लेट से आपको ऐसे दिया x इज इक्वल टू a साइन ऑफ, क्या ले ले एग्जाम्पल हम लोग, चलो इसके लिए एग्जाम्पल ले लो साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड y इज इक्वल टू, लेट से दिस एग्जाम्पल इज कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। तो x का मैंने एम्पलीट्यूड 1 लिया, y का एम्पलीट्यूड 2 लिया है, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों ने अलग अलग लिया। नाउ मुझे अभी, अच्छा यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 90 है, इसीलिए वो y का वैल्यू cos आ गया। अभी यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो कैसे करेंगे, ये जो cos 2 थीटा है ना, cos 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 होता है, राइट। तो ये आ जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू, तो y को लिखो यहाँ पर 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। बट हमारे पास तो साइन का वैल्यू है ना इक्वेशन नंबर 1 से, तो उसको पुट करो तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू साइन का वैल्यू क्या है x, तो 2 माइनस 4 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये आ गया y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 एक्स स्क्वेयर, मीन्स y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वेयर। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वेयर है, मतलब क्या होगा, ये तो पैराबोला का इक्वेशन है ना, माइनस एक्स स्क्वेयर मतलब ये ऐसे आ जाएगा। अब ये पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ योर एम्पलीट्यूड ऑफ x एंड y, राइट। चलो फिर ये था आपका सुपरपोजिशन ऑफ 2 परपेंडिकुलर SHM। आई होप यहाँ पर आपको सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी डाउट है तो पूछ लेना यहाँ पर, राइट। चलो बस करते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।